Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Now let's begin with the first proper lecture of financial management. Yesterday, I have already given you the view what financial management is all about. All right. Now today we'll begin with the definition of financial management. Then we'll do the two approaches to financial management. Number one is the traditional approach and the other is the modern approach, right? So to begin with, first of all, we'll start with what is financial management. Financial management kya hota hai? So yesterday I told you it is all about managing finances, correct? It is all about arranging all the sources of finance. हम लोग को कहाँ से finance एक organization arrange करता है. If we are talking about companies form of organization, then we have two kinds of funds, owned funds and borrowed funds. So today we'll do what all about it is. All right. Introduction to financial management. Introduction to financial management. Now, so first of all, we'll write the definition of financial management. So what is financial management? Financial management deals with the procurement of funds. Now, what do you understand by the term procurement? What do you mean by the term procurement? From where to arrange the funds? Procurement basically refers to purchase. Procurement का अगर हम economics में meaning देखें तो procurement means to purchase या to acquire something, correct? So financial management also deals with the procurement of funds, correct? How to collect the funds from various sources or how to organize the funds from various sources and their effective utilization in the business. And their effective utilization in the business. So this is the proper definition which has been given by S.C. Kushal. S.C. Kushal. S.C. Kushal has given this proper definition of financial management. It deals with procurement of funds, financial management. I'm writing the short forms, but you're not supposed to write it. Oh, all right. Financial management deals with procurement of funds. Procurement basically refers to arrangement of funds, right? And their and their effective utilization in the business. And their effective utilization in the business. तो किस तरीके से हम अपने funds को acquire करते हैं? What is the method we are acquiring the funds? What is the costing we are acquiring the funds at? And their use in the business organization. And their effective utilization, उनका अच्छे से utilize करना business में, it is all about financial management. Correct? Now you have already done financial accounting in your first semester. What was financial accounting? Financial accounting basically refers to accounting, recording of all the transactions. Correct? आपको पता है financial accounting में आप क्या करते थे? सबसे पहले आप transactions को analyze करते थे. अगर वो transaction monetary nature का होता था, then you were supposed to record it in the books of accounts. Correct? Financial accounting यही होती थी बेटा, जिसमें we were supposed to interpret the profitability of the organization. We need to check the profitability of the organization, whether we are having profit or whether we are having loss. यही हमारा main objective होता था in financial accounting. But when I'm talking about financial management, so financial management is a broader concept. All right, beta. Financial accounting उसी का एक part है. Financial accounting उसी का एक part है जिसके results थोड़े बहुत matter जरूर करते हैं कि हमने किस तरीके से funds को utilize किया है business में. But अब यहाँ पे एक major change आएगा. What will be that major change? Number one, there are two terms. The first term is profit maximization and second term is wealth maximization. So what do you think is the better option for the companies to go in for? क्या companies को
या ऑर्गेनाइजेशंस को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए, क्या उनको अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी चाहिए? व्हाट डू यू ऑल थिंक? Wealth. Wealth. Now Ma'am, wealth. Now if I'm talking about wealth maximization, what do you understand by wealth maximization? Money. Money. और profit maximization बेटा? Apart from wealth. बेटा आपकी क्लास में कहाँ से बच्चे शुरू होते हैं? मैम साक्षी। मैम एस से मैम ये कुश एंड ये कुशी उशी मैम सेक्शन बी की है मैम। बेटा सेक्शन बी, प्लीज लीव द क्लास। मैम काफी लोग हैं, रविशंकर है कोई मैम, वो भी मैम बहुत बच्चे हैं। in the section B group also. I have written already in the उसमें, while sending the link I have written it's only for section C. Yes ma'am. Please pay attention to the timetable also beta. You also get the timetable. It's not just teachers are getting the timetable, all the students also get the timetable. And Kush is not aware is this is a BBA class or the BBA class. I don't know, they don't see the timetable and studying doing the professional courses enter the classrooms. Kush, leave my class immediately. Now it's okay, I think. उदेश देखो और कोई है बेटा अभी? मैम नो मैम। No ma'am. All right. Now let's continue. I was talking about two terms. Number one, I was talking about profit maximization, and the other term that I was talking was wealth maximization. Correct? तो यहाँ पे पहले का क्या ऑब्जेक्टिव होता था बेटा? पहले ये ऑब्जेक्टिव होता था सबका कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्लियर डेज, राइट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता था? दे यूज्ड टू फॉरगेट द रिस्क फैक्टर. वो लोग कुछ नहीं सोचते थे कि कितना रिस्क होगा, क्या होगा. दे जस्ट इन्वेस्ट देयर फंड्स. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बस फंड्स लगाते जाते थे कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएं. करेक्ट? ये होता था पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बट टुडे द फर्म्स हैव शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. नाउ दे वांट कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो. वेल्थ मैक्सिमाइज करने का मतलब है शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है मार्केट में वो और ज्यादा बढ़े, वो और ज्यादा बढ़े. So you have in unit 1 profit maximization versus wealth maximization or satisfaction. We'll do that also. Then I was telling you the difference between financial accounting and financial management. Financial accounting में दूसरा difference क्या होता है? आपने पढ़ा होगा financial accounting is basically related to accrual concept. आपने पढ़ा होगा accrual concept. Now what was accrual concept? अगर आपकी expense उसी साल की है तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर दिखाओगे, भले उसका इनफ्लो हुआ है कैश का, चाहे आउटफ्लो हुआ है नहीं हुआ है. डू यू ऑल रिमेम्बर? सर ने आपको बताया होगा, जैसे अगर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यू यूज्ड टू राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दिखाते थे आप लोग? Yes ma'am. So that is basically accrual concept. मतलब जो भी चीजें इस साल की हैं वो आपको इसी साल रिकॉर्ड करनी है. लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट देखते हैं. हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. वी लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश हमारे पास से गया. वी ओनली लुक इनटू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट? अब पहले क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है, ठीक है? ये देखता है एक ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां से हम अपने फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एंड हाउ टू यूटिलाइज देम इन द बिजनेस. अब यूटिलाइजेशन बेटा आपको कैसे पता लगेगा? आगे हम लोग सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे. हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ेंगे. तो जब आपको इसमें केस आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, आप क्या करोगे? आप सारे प्रोजेक्ट्स, उस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करोगे डिफरेंट टेक्निक से. एक्सक्यूज मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम एक सेकंड मैम, ये कोई लास्ट में कोई पर्सन है जो अपना कैमरा ऑन करे, क्लास का नहीं है, आउटसाइड द क्लास है. नाम बताओ बेटा. मैम ये इसका नाम लिखा हुआ EJFBIIL6N ऐसे करके कोई है.
मैम एट कौन द है? लास्ट में। समझ गए। कौन है बेटा ये? मैम ये पता नहीं मैम, क्लास का नहीं है, इनका कैमरा ऑन है। मैम इफ रिमूव हो तो रिमूव कर दीजिए। वही कर रहे हैं बेटा। रिमूव, रिमूव। यस मैम। ऑलराइट, रिमूव कर दिया हमने उसको। तो अब हम लोग को इसमें दो अप्रोचेस पढ़नी है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फाइनेंशियल अप्रोच। ऑलराइट, ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले क्या अप्रोच थी, नाउ व्हाट इज द अप्रोच टुडे। थोड़ी थ्योरी करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं क्लियर होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Now, if I'm talking about traditional approach, there were only 3 functions that the financial manager was supposed to do. पहला इसका function था arrangement of funds. The first thing he used to do was to arrange the funds. Arrangement of funds, both for the short term and long term purpose. Both for short term, and long term. ठीक, पहला काम ये था इसका ट्रेडिशनल अप्रोच में कि उसको फंड्स अरेंज करने थे फॉर बोथ द पीरियड्स, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड आल्सो एंड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड आल्सो। सेकंड फंक्शन वाज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उसको सही डायरेक्शन में लगाना। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज द सेकंड फंक्शन, करेक्ट। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन थ्रू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। उसको कहां पे अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी है, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एंड लास्ट इज all the finance functions. He used to follow the finance functions. बस उसको बस यही देखना था कि जहां हमने फंड्स लगाए हैं क्या रिटर्न दे रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना, एंड फॉलो ऑल द लीगल प्रोविजंस, करेक्ट, रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, रिलेटिंग टू फंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मैंने आपको बताया, एक्वायर करना फंड्स को, देयर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, their use and distribution. This was the traditional approach to financial management. Now if I am talking about modern approach, जो आज की डेट में सबका नजरिया चेंज हो गया है, वो क्या अप्रोच है, वो ये अप्रोच है। सबसे पहले मैनेजर जो देखता है वो देखता है टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, पहली चीज। दूसरी चीज, assets to be acquired, assets to be acquired, कितने assets हमको acquire करने हैं अपने funds के हिसाब से। और तीसरी चीज, pattern of financing the assets, pattern of financing the assets, correct। उसको ये सारी चीजें मेन देखनी होती है। This was the traditional and modern approach. Is it clear to everyone? Yes ma'am, yes Yes, ma'am। ma'am. Yes, Okay, ma'am. बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Therefore, मेन चीज बेटा आप देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ही पर्सपेक्टिव्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू बेसिक एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू बेसिक एस्पेक्ट्स। पहला इसका बेसिक एस्पेक्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पहला तो है कि फंड्स अरेंज करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा इसका है इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स, effective use of funds to achieve objectives. Achieve objectives. मैम ये सेक्शन बी की है कोई? मूरत बेटा मीटिंग लीव करो, अभी तुम्हारी क्लास नहीं है। जी मैम सेक्शन बी के हैं हम। बेटा लीव करो, सेक्शन बी की Section क्लास C नहीं है, की क्लास सेक्शन चली। सी की चल रही है बेटा। ओके सॉरी मैम, सॉरी। आप लोग के ग्रुप सेक्शन वाइज अलग अलग होने चाहिए।
Now yesterday we have already discussed कि सबसे important 3 decisions होते हैं फाइनेंस मैनेजर के लिए. पहला डिसीजन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. तो इस पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा. सबसे इंपॉर्टेंट decisions taken by the finance manager. Decisions taken by finance manager. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इसी तीनों डिसीजंस के ऊपर बेटा पूरा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बसा हुआ है, जो आपको पूरी चारों यूनिट्स में पढ़ना है. पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब देखो इसमें क्या होता है, जब उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, आप कैसे पता लगाओगे कि आप प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाओ कि प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाओ? कोई आइडिया है किसी को? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? मैम जिस प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न आ रहा होगा हम लोग बेसिकली उसी प्रोजेक्ट में करेंगे इन्वेस्ट. करेक्ट. जिस प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न आ रहा होगा हम लोग उसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे. नाउ व्हाट आर द वेज, हाउ विल यू गेट टू नो दैट? मैम डिफरेंट प्रोजेक्ट को एनालाइज करके. बिल्कुल, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हम एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन. फिर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी पढ़ेंगे कि जैसे अगर आज हमारे पास 1 रुपए है तो क्या 2 साल बाद भी 1 रुपए का वही वैल्यू होगी? नो मैम. उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी होगी. करेक्ट. अगर हम प्रॉमिस करें भूखे इंसान को कि हम तुमको 1 महीने बाद एक चावल का बाउल देंगे खाने के लिए, तो क्या उस भूखे इंसान के लिए 2 महीने के बाद के चावल के बाउल की कोई कीमत होगी? नो मैम. उसको तो आज चाहिए ना वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो आज भूखा है. गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे 4-5 टेक्निक से. अगर 4-5 टेक्निक्स में रिजल्ट फेवरेबल होता है तो फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा कि हमको इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है. नंबर 1. दूसरा डिसीजन हमारा है बेटा फाइनेंस डिसीजन. फाइनेंस डिसीजन इज टॉकिंग अबाउट विच सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सॉर्टेड टू अरेंज द फाइनेंस फॉर द बिजनेस. बात समझ आई कि कौन से सोर्स से हम पैसा रेस करें? जैसे हमने आपको कल बताया था, हमारे पास फाइनेंस, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए ओन्ड फंड्स भी होते हैं और बोरोड फंड्स भी होते हैं. तो नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. हमको इसमें हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे? इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. इसमें हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हम डिबेंचर से अगर पैसा रेस करेंगे तो हमारी क्या कॉस्टिंग आएगी? अगर हम शेयर्स के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं, या अगर हम रिटेन अर्निंग्स अपनी लगा रहे हैं, या अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइनेंस द बिजनेस. तो हम सारे फाइनेंसिंग डिसीजंस में सारे ऑप्शंस का कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और तीसरा डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन. तीसरा डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन. इस डिसीजन से भी हम क्या रिलेट करेंगे? इस डिविडेंड डिसीजन से हम ये रिलेट करेंगे कि क्या हमें डिविडेंड अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए या फिर हमें डिविडेंड अपनी रिटेन करके रखनी चाहिए. करेक्ट. वी विल लुक इनटू द मैटर दैट शुड वी डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और शुड वी रिटेन द डिविडेंड. इसके भी फॉर्मूले होते हैं, हम लोग को वॉल्टर गॉर्डन मॉडल सब करने पड़ेंगे, कैसे क्या निकाला जाता है. आई विल टेल यू एवरीथिंग, तब आपको वो बहुत चीज इंटरेस्टिंग लगेगी. तो जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेटा, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर. करेक्ट. इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम. Yes ma'am. All right बेटा. Now we move on to the main thing, difference between profit maximization and wealth maximization. ये बहुत पूछा जाएगा आपका यूनिट 1 का, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है. Now if I am talking about profit maximization, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली आज की डेट में बहुत अनरियलिस्टिक हो गया है. राइट. नोबडी इज वांटिंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, बिकॉज आपको भी पता है कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, इतना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Why? Because you have n number of competitors selling the same product, that too at a lower price. Then in that scenario, how will you maximize your profit? पहले क्या होता था बेटा, जब हम लोग बहुत पहले अकाउंट ये मार्केटिंग वगैरह होती थी तो वहां पे कंज्यूमर बिल्कुल अवेयर नहीं होता था. गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे कंज्यूमर को कोई भी नॉलेज नहीं होती थी, कस्टमर को कोई भी नॉलेज नहीं होती थी. व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट इन द एनवायरनमेंट जिसके आसपास पूरी इंफॉर्मेशन
अवेलेबल हो। आज की डेट में क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी, आप तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। While buying any product, आप you survey the 10 websites, then you go for the option. तो पहले इतना कंज्यूमर के पास इतना ऑप्शन नहीं होता था, तो आप प्राइस एक बार चार्ज कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ वेग कॉन्सेप्ट, करेक्ट, इज अ वेग कॉन्सेप्ट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये एक अनरियलिस्टिक है, डिफिकल्ट है, और इट इज नॉट प्रेफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहा तो उनको क्या हो जाएगा, उनके जो भी बचे हुए कस्टमर्स हैं वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, कस्टमर्स विल मूव ऑन टू दी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, ये रिटर्न की टाइमिंग्स नहीं देखता है, इट इग्नोर्स द टाइमिंग्स ऑफ रिटर्न, रिस्क को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। कई बार हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में इतना ज्यादा रिस्क बियर कर लेते हैं कि ये रिस्क फैक्टर को भी बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। Then it also takes decisions which prove to be disaster in the long run. ऐसे decisions लेने पड़ते हैं जो कि लॉन्ग रन में, इन द शॉर्ट रन दे आर वेरी फ्रूटफुल, हमको दिख रहा है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे we'll get returns, बट लॉन्ग रन में हमको बिल्कुल डिजास्टर हो जाता है हमारे लिए, करेक्ट। फिर उसके बाद it may cause decreasing share prices. Who will explain this point कि how it will cause decreasing share prices? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में हमारे शेयर प्राइसेस कैसे कम हो जाते हैं, बताओ बेटा। क्योंकि शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, फिर शेयर के रेट बढ़ जाते होंगे। नहीं, इसमें कह रहा है शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। मैम हम लोग ज्यादा कस्टमर्स को मतलब अपना होता है ना मार्जिन कैप्चर करने के लिए, अपने कस्टमर से कैप्चर करने के लिए शेयर के प्राइस इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि हो सकता है लाइक कम शेयर्स पे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शेयर का प्राइस कैसे कम होगा, थोड़ा रिलेट करो, बता लोगे। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग कम खरीदेंगे और शायद शेयर की वैल्यू उसकी वजह से कम हो जाए। एक बार फिर से बोलो शांतनु बेटा। मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइज की वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो जो कस्टमर है कम मतलब अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसकी मार्जिन या फिर उसका रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से शेयर वैल्यू कम हो जाए। अच्छा, आपका लॉजिक, अब मेरा लॉजिक सुनो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में वी लूज द कस्टमर्स। हमने आपको बताया ना, इतने कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं हम उनको रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आपने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दिया, पर आपके कॉम्पिटिटर ने तो नहीं किया ना बेटा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. leading to fall in the share price of your company. ठीक? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। डिफरेंसेस हैं कुछ, you all will copy all these notes, okay? Difference between profit maximization, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, and shareholders wealth maximization. पहला बेसिस है इसका मीनिंग। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इंश्योर्स, इसका मीनिंग क्या है? इट इंश्योर्स दैट फर्म यूटिलाइजेस, it ensures that firm utilizes its available resources, firm utilizes its available resources most efficiently under conditions of competitive market, under conditions of competitive market. It ensures that firm utilizes its available resources most efficiently under conditions of competitive market. Correct? And इसमें क्या है? It aims at increasing the value of stakeholders. Who are stakeholders? It aims. Stakeholders कोई भी ऐसा person जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। Correct. Stakeholder is the person who directly or indirectly is associated with the organization. कुछ एग्जाम्पल दे दो बेटा।
मैम जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई, जो रॉ मटेरियल परचेज वो सप्लाई करता है कंपनी को, ठीक है, करेक्ट, ऐसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डिबेंचर Correct. होल्डर्स। करेक्ट। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि हम अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज करें अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ओके, दूसरा पॉइंट है एम, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, आपको पता है, टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है इसका हमारा एम, टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और उसका एम क्या है, टू इंक्रीज, टू इंप्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, टू इंप्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स, टू इंप्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स, इसका दूसरा एम है। ठीक, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, नैरो ब्रॉडर, करेक्ट। नेक्स्ट, रिस्क, मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर, सारी रिस्क को वो लेने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उसके लिए डिजास्टर्स प्रूव होती हैं इन द लॉन्ग रन। सो इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट कंसिडर्स रिस्क, ये रिस्क को ध्यान में रख के सारे फैसले लेता है, इट कंसिडर्स रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट, it focuses on short run projects, so this is the period, time period, इसका फोकस होता है शॉर्ट रन पे, इसका फोकस होता है लॉन्ग रन पे, करेक्ट। it focuses on long run projects, it focuses on long run projects। और लास्ट पॉइंट है टाइमिंग्स ऑफ रिटर्न, इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, और उसमें टाइमिंग ऑफ रिटर्न पे वो खास ध्यान देता है कि आज हमने अगर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो टिल व्हाट टाइम पीरियड विल आई एक्सपेक्ट द रिटर्न्स, यू विल डू ऑल द कैलकुलेशंस। टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, प्लीज कॉपी इट डाउन इन योर रजिस्टर्स प्रॉपर्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस मैम। इट इग्नोर्स टाइमिंग्स ऑफ रिटर्न, it considers timings of return। Difference clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। All right. So now can you write a note if a question arises? You have to write how the profit maximization is the limitation. It is the limitation of, or it is the objective of the firm. Can you explain profit maximization? Ma'am, can you repeat the question, please? The question is, can you explain if in exam it is asked, explain profit maximization as an objective of the firm, or explain the limitations of profit maximization objective of financial management. कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लिमिटेड है अपनी अप्रोच में, क्यों नहीं उतना अच्छा है? क्योंकि ये सारी सोशल वैल्यूज को इग्नोर करता है, करेक्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आप अपने ऑब्लिगेशंस भूल जाते हो टुवर्ड्स द वर्कर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, एम्प्लॉयज, सोसाइटी, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स, करेक्ट। देखते हो Yes, जब ma'am. फर्म्स को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, दे गो इनटू एक्सप्लॉइटिंग एनी काइंड ऑफ पीपल व्हिच आर एसोसिएटेड विद इट, करेक्ट। यस मैम। सबको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपको ऑब्जेक्टिव है, उसका साफ मतलब है कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन इज वांटिंग टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर मेक्स द डिसीजंस सो दैट द प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड, so that the profits can be maximized. He even undergoes the risk, he even takes such decisions which can be prove to be disaster in the long run, correct. He only focuses on the short run objectives. He also ignores his responsibility towards the society. He does not calculate the return, ठीक है ना। So इसमें आप लोग ये सब बताएंगे। And if you get a question on wealth maximization, आपको पता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इसमें जो है हम लोग सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हैं। वी नॉट ओनली टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वी
we keep into consideration the value of the shareholders, right? We take care of the interest of shareholder, and not only shareholders, also the stakeholders, and stakeholders को भी देखते हैं कि stakeholders भी हमारे, देखो shareholder और stakeholder में difference है, तो यहाँ हम सिर्फ stakeholders पे ही नहीं चल रहे हैं, हम सब पे चल रहे हैं, stakeholders को हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? stakeholders कोई भी person जो हमारे organization से associated है वो affect नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है बेटा? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बताओ बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग? मैम टाइम के साथ जो मनी है उसकी वैल्यू, मतलब आज जो वैल्यू है, जैसे 100 रुपए की आज जो वैल्यू है वो कल 100 रुपए की वो वैल्यू नहीं है मैम। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली मीन्स द वर्थ ऑफ रुपी, the worth of rupee received today is different from the worth of rupee to be received in future, correct? Time value of money, अगर हम 1 रुपए की वैल्यू देखेंगे, so the worth of rupee, the 1 rupee that I am receiving today, उसका क्या worth है in comparison to its worth when received after 1 year, correct? 1 रुपए की वैल्यू, अगर if I am getting 100 rupees today, what is the worth of rupees 100 today in comparison to the worth of same rupees 100 after a year or two? It is called time value of money, correct? Today time value of money is very important for people and for all the business houses, correct? You all know that there is economy, there is inflation in the economy. Now what do you mean by inflation? Inflation is the continuous rise in the price level. आपको पता है inflation क्या होता है, correct? अब देखो रिस्क फैक्टर समझना टाइम वैल्यू में, बहुत अच्छा प्रोवर्ब लिखा हुआ है, 1 rupee now is certain, 1 rupee now is certain, 1 रुपए का मिलना आज श्योर है, ठीक है? Whereas 1 receivable tomorrow is less certain. Such a nice proverb. 1 रुपए का आज मिलना पूरा श्योरिटी है, बट 1 रुपए का कल मिलना बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। द बर्ड इन द हैंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बात समझ रहे हैं आप? हम लोग काफी अपॉर्चुनिटीज ऐसी देख लेते हैं, काफी ऑप्शंस हम ऐसे देख लेते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको कल ये बहुत अच्छे मिलेंगे, हमको 1 रुपए की जगह 5 रुपए मिलेगा, बट वी आर नॉट लुकिंग कि आज जो 1 रुपए है वो तो श्योर शॉट आपके पास है ना, कल जरूरी थोड़ी ना कि आपको 5 रुपए मिल ही जाएंगे। So the value that is in your hand today is more certain than the value that you will get tomorrow, correct? Yes ma'am. yes You will look into the time value of money, बहुत important है। इसमें हम लोग कैश फ्लोज जब करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे? हम इसमें कंपाउंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड करेंगे। आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम सिंपल इंटरेस्ट वो बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ईयर पे हम कैलकुलेट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं। ना, मैम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही यूज होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। शोभित ने सही बताया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल इंटरेस्ट हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया, तो जब हम नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं, हम प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट नहीं जोड़ते हैं, हम प्रिंसिपल अमाउंट में ही वो देते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देते हैं। तो कंपाउंडिंग का पावर क्या है, हमारे ब्याज पे भी ब्याज मिला। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग यही करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड करेंगे और फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू जान के। तो मैक्सिमाइज जब हम वेल्थ करते हैं तब हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखना होता है। क्लियर टू ऑल? Yes ma'am. ठीक है ना? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे। उदेश आप अटेंडेंस ले लेना फिर से आज भी बेटा।
अटेंडेंस ले लो आप। मैम डन। सारी अटेंडेंस हो गई? यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूछो बेटा, 3 मिनट है, पूछ लो, लेट द मीटिंग एंड। मैम डिविडेंड डिसीजन एक बार बता दीजिए। बेटा डिविडेंड डिसीजन में देखो, उसमें कंपाउंडिंग की पावर आ गई। हम जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सोचते हैं हम डिविडेंड आज दे दें कि हम उनकी डिविडेंड रिटेन करके उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दें। बात समझ रहे हो? हम डिविडेंड आज डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हम डिविडेंड को उनको री इन्वेस्ट करके उस पे भी उनको हम ब्याज दिलाएं। डिविडेंड हम रिटेन करें कि डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसमें हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, ये वो डिसीजन होता है। बात समझ आई बेटा? ओके मैम, थैंक यू मैम। और कुछ पूछना है पूछो जिसको भी बेटा। एनी अदर डाउट, एनी अदर प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी।